عزیز بھائیوں اور بہنوں، پہلا کرنتھیوں اس کا 6 باب اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیت یوں بیان کرتی ہے: کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو؟ پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ تم قیمت سے خریدے گئے ہو، آدمیوں کے غلام نہ بنو۔ میرے عزیزو، یہ حقیقت ہے کہ ایماندار اب خدا کی ملکیت ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ اس نے ہمارے لیے جو کچھ بھی کیا ہے اس کے لیے ہم ایسی زندگی گزاریں جس سے اس کی پاکیزگی منعکس ہو۔ پوری بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں سے اس کا کردار ظاہر کریں۔ جو کچھ خدا کرتا یا کر چکا ہے اس سے نظر آتا ہے کہ خدا کیسا ہے۔ بالکل اسی طرح کوئی شخص ہمارے طرز عمل اور ہمارے کاموں کو دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ ہم کیسے ہیں۔ خدا کے پاک کردار کی تقلید کرنا بہت عملی اہمیت کا حامل ہے۔ خدا کی قوم بنی اسرائیل کے لیے اس کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح کا عدل اور رحم خدا نے ان کے ساتھ کیا ہے، انہیں بھی چاہیے کہ غلاموں اور دیگر محتاجوں کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کریں۔ تو خروج کی کتاب اس کا 23واں باب اس کی 9ویں آیت میں یوں ہدایت درج ہے: تم پردیسی پر ظلم نہ کرنا، کیونکہ تم پردیسی کے دل کو جانتے ہو، اس لیے کہ تم خود بھی ملک مصر میں پردیسی تھے۔ میرے عزیزو، اکثر اوقات ہم پاکیزگی کو ایک نہایت شخصی معاملہ خیال کرتے ہیں، یا محض کچھ دینی رسومات ادا کر لینے یا بعض احکام پر عمل کر لینے کو ہی پاکیزگی کا نام دیتے ہیں۔ بے شک پاکیزگی ہم میں سے ہر کسی کا شخصی معاملہ ہے۔ دل کی پاکیزگی کے لیے کام کرنا بہت اہم ہے، لیکن احبار کی کتاب کے 19ویں باب سے ظاہر کرتے ہیں کہ خدا کے کردار کو منعکس کرنے والی زندگی بھی بہت اہمیت رکھتی ہے، اور وہ اپنے سماج پر بھی مثبت طور پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس میں فصل کی کٹائی کے موسم میں غربا کے ساتھ فیاضی سے پیش آنا، کارکنوں کے ساتھ انصاف کرنا، دیانت دارانہ تجارت وغیرہ شامل ہے۔ احبار کی کتاب کے اس باب میں ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ میں خداوند ہوں۔ گویا خدا یہ فرما رہا ہے کہ میں یہ کچھ چاہتا ہوں کہ آپ کریں، کیونکہ میں خود بھی ایسا ہی کرنا پسند کرتا ہوں۔ نئے عہد نامے میں بھی کردار کی پاکیزگی پر اسی طرح زور دیا گیا ہے۔ مقدس پولس رسول نے تھسلنیکیوں کو یہ لکھا، جو 4 باب کی 3 اور 7ویں آیت میں درج ہے: چنانچہ خدا کی یہ مرضی ہے کہ تم پاک بنو۔ خدا نے ہم کو ناپاکی کے لیے نہیں بلکہ پاکیزگی کے لیے بلایا ہے۔ سارے نئے عہد نامے میں خدا کے لوگوں کو مقدسین کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ پولس رسول اکثر اپنے خطوط کا آغاز انہیں مقدس کہتے ہوئے کرتا ہے، جیسے کرنتھیوں کا خط، 2 کرنتھیوں کا خط، افسیوں کا خط، فلپیوں کے نام خط، کلسیوں کے نام خط، اور یہاں درج ہے ان سب کے نام جو روما میں خدا کے پیارے ہیں اور مقدس ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ آئے ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ میرے عزیز و ایمانداروں کو ایسے زندگی بسر کرنی چاہیے جیسے کہ وہ خدا کے حضور قربان کر دی گئی ہو۔ رومیو کا خط اس کا 12واں باب اور پہلی آیت میں ہمیں رسول لکھتا ہے: پس آئے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ میرے عزیزو، ایمانداروں کو صرف فردن ہی نہیں بلکہ مجموعی طور پر پوری کلیسیا کو پاک ہونے کے لیے بلایا گیا ہے۔
पाक होने की बुलाहट इज्तमाई है। पहला कुरिन्थियों उसके पहला बाब उसकी दूसरी आयत इसके बारे में यूं बयान करती है, खुदा की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, यानी उनके नाम जो मसीह यीशु में पाक किए गए और मुकद्दस लोग होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने खुदाम यीशु मसीह का नाम लेते हैं। मेरे अजीजों, यीशु मसीह के मरने की एक वजह यह है कि वो कलीसिया को पाक करे। चुनाचे इस बात का बयान इफसियों के 5वें खत की 25वीं, 26वीं और 27वीं आयत में है। आए शौहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। तो मेरे अजीजों, पूरी बाइबल मुकद्दस में हमें खुदा की मानिंद बनने का तसव्वुर मिलता है, और नए अहदनामे में तो मसीह की मानिंद बनने की वाज़ेह ताकीद की गई है। पुराने अहदनामे में अक्सर इस्तेलाह इस्तेमाल हुई है खुदा की राह पर चलना। ये राहें दूसरे माबूदों की राहों से, दूसरी कौमों की राहों से और खुद हमारी अपनी राह या गुनाहगारों की राह से बिल्कुल फ़र्क है। इस्तिस्ना की किताब के 10वें बाब की 12वीं आयत में इसके बारे में बयान है, बस आए इसराइल, खुदावंद तेरा खुदा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ माने और उसकी सब राहों पर चले और उससे मोहब्बत रखे और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की बंदगी करे। मेरे अजीजों, खुदा की राहें क्या हैं? उसकी राहों पर चलने का मतलब है कि हम अपने अमली मसाइल के बारे में रास्त और सच्चे फैसले करें, क्योंकि ये मसाइल हमारी रोज़ाना ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। इस्तिस्ना के किताब के 10वें बाब में यूं दर्ज है, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा इलाहों का इलाह, खुदावंदों का खुदा है। वो बुजुर्गवार और कादर और मुहीब खुदा है, जो रू और रायत नहीं करता और ना रिश्वत लेता है। वो यतीमों और बेवाओं का इंसाफ करता है और परदेसी से ऐसी मोहब्बत रखता है कि उसे खाना और कपड़ा देता है। सो तुम परदेसियों से मोहब्बत रखना, क्योंकि तुम भी मुल्क मिस्र में परदेसी थे। मेरे अजीजों, खुदा की मानद बनने का तसव्वुर नए अहदनामे में भी मौजूद है। खुदा यीशु ने खुद हुक्म दिया। मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 48वीं आयत में इस हुक्म का जिक्र है, बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। मुकद्दस पौलुस रसूल ने भी इफसियों को नसीहत की कि खुदा के पाक किरदार की तकलीद करें और मोहब्बत की ऐसी ज़िंदगी इख्तियार करें जैसे मसीह ने हमसे मोहब्बत रखी। और इफसियों के ख़त के 5वें बाब की पहली आयत में वो यूं रकम तराज है, बस अजीज़ फर्जंदों की तरह खुदा की मानंद बनो और मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की। मुकद्दस पौलुस ने भी खुदावंद यीशु को हमारे लिए नमूना ठहराया है, जिसकी हमें अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में पैरवी करनी चाहिए। उसने फिलिपी के ईमानदारों का ताकीद की कि खुदावंद यीशु के मिजाज और रवैये की तकलीद करें। मसीह का रवैया और मिजाज कैसा था? हमारा मिजाज और रवैया भी वैसा ही होना चाहिए। मुकद्दस पौलुस ने ईमानदारों को ये तलकीन भी की कि मेरी मानंद बनो, लेकिन सिर्फ उसी हद तक जहाँ तक वो खुद मसीह के पाक किरदार की दयानतदारी से तकलीद करता था। चुनांचे पहला कुरिन्थियों 11वां बाब उसकी पहली आयत में वो लिखता है, तुम मेरी मानंद बनो जैसा मैं मसीह की मानंद बनता हूँ। तो थस्सलुनीके की कलीसिया मुकद्दस पौलुस और उसके साथियों की मानंद और इस तरह खुदावंद यीशु की मानंद बन गई थी। इसलिए मुकद्दस पौलुस थस्सलुनीके के ईमानदारों की तारीफ करता और कहता है कि वो एक अच्छा और दूसरों के लिए काबिल तकलीद नमूना बन गए हैं। चुनांचे वो
पहला थस्सलुनीकी उसके पहला बाब उसकी 6वीं और 7वीं आयत में बयान करता है, तुम कलाम को बड़ी मुसीबत में रूहुल कुद्दस की खुशी के साथ कबूल करके हमारी और खुदावंद की मानंद बने, यहाँ तक कि मकदूनिया और अखिया के सब ईमानदारों के लिए नमूना बने। और मसीह खुदावंद के 2 शागिर्दों पतरस और यूहन्ना ने भी ईमानदारों को खत लिखकर उन्हें ताकीद की और उनकी हिम्मत अफजाई की कि मसीह ने जो नमूना छोड़ा उसकी पैरवी करें और उसी के नक्शे कदम पर चलें। चुनांचे पहला पतरस उसका 2 बाब और इसकी 21वीं आयत में यूं दर्ज है, तुम इसी के लिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। और यूहन्ना का पहला खत उसका 2 बाब और 6वीं आयत बयान करती है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें कायम हूँ तो चाहिए कि ये भी उसी तरह चले जिस तरह वो चलता था। मेरे अजीजों, पाकीज़गी खुदा के जौहर को बयान करने का बाइबली तरीका है। लाजम है कि ईमानदार की ज़िंदगी खुदा की ज़ात और उसके किरदार की आईनादार हो। अजीज भाई और बहनों, हमारा चाल चलन और वो तरीका जिससे हम खुदा की ज़ात और किरदार को मुनक्स करते हैं, वो इसलिए अहम है कि इस तरह दुनिया देखती है कि खुदा कैसा है जिसको हम मानते हैं। इन मानों में बा-इखलाक ज़िंदगी एक बशारत और तबलीग है। तारीख गवाह है कि बहुत दफ़ा बेदीन लोग खुदा के लोगों की पाकीज़ा तर्ज ज़िंदगी से मुतासर हुए। कई दफ़ा लोग इसलिए मान ले आए कि उन्होंने खुदा के लोगों की ज़िंदगियों में वो तब्दीलियाँ देखीं जो खुदा ने पैदा की थी। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मत्ती की इंजील 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत खुदावंद यीशु के इस फरमान को बयान करती है, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। इसलिए ज़रूरी है कि हम रोज़ाना चाल चलन में खुदा की और उसके बेटे खुदावंद यीशु मसीह की पाकीज़गी की तकलीद करें, जैसी कि पाक कलाम में ज़ाहिर की गई है और हमें बार बार हदायत की गई है। मेरी दुआ है कि खुदा आपको ऐसा ही करने का फजल बख्शे और आप उसके जलाल को, खुदा के पाक किरदार को अपनी ज़िंदगियों से, अपने कौल व फ़िल से, अपने चाल चलन से ज़ाहिर करते रहें और उस पर अमल भी करते रहें। मसीह यीशु के नाम से आमीन।